इस वीडियो में हम ISS 2022 स्टैटिस्टिक्स 1 के 16 to 20 क्वेश्चन करेंगे। So for question number 16 इनने हमें दिया है कि एक ट्राइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें R1213 एंड R23 की वैल्यू R के बराबर है, where R represents the correlation coefficient। तो हमने जो है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है। उसकी हेल्प से हमने 1 माइनस मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को वैल्यू को चेक करना है। सो यहाँ पे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की फॉर्मूला की वैल्यू यूज होगी वो है R13 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स R12 R13 एंड R23 अपॉन 1 minus R23 square. So since all these r's are equal to r, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं this becomes 2r square minus 2r cube upon 1 minus r square। हमें फाइनली वैल्यू इस एक्सप्रेशन की चाहिए, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेंगे। 1 minus r square minus 2r square plus 2r cube divided by 1 minus r square। हम वैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इधर भी सॉल्व कर सकते थे। 2r स्क्वायर कॉमन निकालने पे 1 माइनस r आएगा इधर, और डिनोमिनेटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। दिस विल कैंसल आउट एंड दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 2r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस r। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह। और r को हम -2r प्लस 2r माइनस r लिख के सॉल्व करेंगे। And finally, this expression becomes 2r plus 1 into 1 minus r into 1 plus r raised to power minus 1. So, second option is the correct answer. Then question number 17. इसमें इनने हमें बोला है कि x is normally distributed with mean mu and variance 1 and y square follows chi-square with f degrees of freedom. PDF of x will be 1 upon square root 2 pi exponential minus x minus mu square divided by 2। और अगर इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 upon square root 2 pi exponential minus x square by 2 minus mu square by 2 and plus mu, which is equals to 1. So this implies the integration of minus infinity to infinity exponential minus x square by 2 plus mu x becomes square root 2 pi e raised to power mu square divided by 2। Similarly, अगर हम y के लिए सॉल्व करें तो f of y स्क्वायर हमारे पास है 1 अपॉन गामा f by 2 2 raised to power f by 2
एक्सपोनेंशियल माइनस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 and y raised to the power y square raised to the power f by 2 minus 1. So this is the PDF for y square. तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर लिमिट हमारी जाती है 0 to infinity. f of y square dy square बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity 1 upon gamma f by 2 raised to power f by 2 exponential minus y square by 2 and y square raised to the power f by 2 minus 1 dy square equals to 1. And hence integration of 0 to infinity exponential minus y square by 2 y raised to the power f minus 2 dy square becomes gamma f upon 2 raised to power f upon 2. Let's number this one and this. तो यहाँ पर इनने हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने को बोला है और साथ में इनने कहा है कि x और y स्क्वायर जो है वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण हम इस एक्सप्रेशन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं. So integration of minus infinity to infinity and 0 to infinity y raised to the power f minus 2 exponential minus x square plus y square divided by 2 plus mu x dy square and dx. इसको हम लिख सकते हैं 2 पार्ट्स में minus infinity to infinity exponential minus x square by 2 plus mu x dx and 0 to infinity y raised to the power f minus 2 exponential minus y square by 2 dy square. So जो हमारे पास रिजल्ट आएगा this is for 1 and this is for 2. तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे हम फाइनली. तो हमारे पास जो लास्ट आंसर बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 raised to the power f by 2 f plus 1 divided by 2 gamma f by 2 square root pi and e raised to power mu square divided by 2. So B part is the correct answer. Then question number 18. इसमें हमें x और y जो है बाइवेरिएट नॉर्मल फॉलो करते दिए हैं और हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई x माइनस वाई और ये चेक करना है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं. So we know that x plus y and x minus y are independently distributed whenever this is the case. तो x plus y और x minus y की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने कंफर्म करनी भी हो तो हम इतना जानते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और इनकी मीन्स जो होंगे 0 और वेरिएंस यहाँ पे मैं कॉमन फॉर्मूला लिख रही हूँ. तो वेरिएंस जो आएंगे वो यही आएंगे सॉल्व जब हम करेंगे इस एक्सप्रेशन. सो 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19.
इसमें इनने हमें आर एक सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया है साइज n, और जो रो है ये पॉपुलेशन कोवेरियंस कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसको इनने हमें 0 दिया है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर स्क्वायर फाइंड करनी है। सो यहाँ यहाँ पे हम ये लगाएंगे, जब हम रो इक्वल्स टू 0 टेस्ट करते हैं तो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, r square root n minus 2 upon r1 minus r which follows t n minus 2 distribution। सो यहाँ पर हमें r स्क्वायर चाहिए तो हम t स्क्वायर ले लेंगे। तो ये किसकी फॉलो करेगा, f1 कॉमा n माइनस 2 को, और f1 कॉमा n माइनस 2 किसके इक्वलेंट होता है, बीटा 1/2 कॉमा n माइनस 2/2। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 20, इसमें इनने हमें जो मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो 0 दिया है। तो इसका मतलब है कि x1 is uncorrelated with x2 and x3, but x2 is uncorrelated with x3 हम नहीं कह सकते, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हम ये श्योरली नहीं कह सकते, नॉट श्योर। और इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सो 1 माइनस r1 2 स्क्वायर एंड 1 माइनस r1 3.2 स्क्वायर। सो r1 3.2 को हम लिख सकते हैं r1.23 स्क्वायर माइनस r12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस r12 स्क्वायर। सो ये बन जाएगा तो सिंपली सॉल्विंग this is equals to 0, so our answer is 1। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड करेक्ट, सी पार्ट is the correct answer। So that's all for this video, see you in the next one, thank you।